reconstruction, amalgamation topic has already been covered in the respective classes at Khalsa College. And today I will complete internal reconstruction. In this, internal reconstruction, understand what is the meaning of the word reconstruction, what is internal, what is external, and what is the process of reconstruction. And most important, why we go for reconstruction. And we will have numericals also in this. So first, let us understand the definition of reconstruction. The term reconstruction means reorganizing the capital structure of a company, including the reduction of claims of both the shareholders and the creditors against the company. Such a reconstruction generally becomes necessary on account of bad financial position of the company. Such reconstruction will be termed as number one, external reconstruction, and number two, internal reconstruction. Let me first explain why it is necessary and what we do. Just imagine your house. You are staying in an old house. Now you are grown up. You want your parents to reconstruct the house. It means you will go for overall changes in the building. It may be external, it may be internal. External means you will totally raise the building and start a fresh building. Internal means the outer structure will remain the same. The columns and beams will be there. You will shift the walls, the doors, just like changing the drawing room into a bedroom or shifting the kitchen from one place to another place, changing the side of the balcony, or it may be fixing another new window instead of old window. All these are internal reconstruction. Why it is required? Whenever a company is in a bad financial position, what is bad financial position? Means the company is not able to make profits or it is running in losses. In that case, the management may like to get rid of the company. So they may sell the company to another entrepreneur. This will be known as external reconstruction. In case of such a new company is formed to take over an existing company, which is in bad financial position. It means the assets and liabilities of the existing company will be taken over by a new company formed by a new management. It means the vendor company or the selling company will go into liquidation. The assets and liabilities of the old company or the selling company will be purchased
by a new company, or you may say purchasing company. The name of the company will be changed. The management of the company will be changed. That is external reconstruction. What is internal reconstruction? In case of such reconstruction, the capital of the company is reorganized to infuse a new life in the company. It includes both alteration and reduction of share capital. Just I will explain this. Why we do it? Why it is necessary? Sometimes the company had suffered heavy losses in the past several years. Students, there was some problem. Now please bear with me. I have shared the screen. I hope the screen is being seen by you. Now again I am starting with the third slide. That is, due to the following reasons there is a need for internal reconstruction. First, when the company had suffered heavy losses in the past several years, it is necessary to write off the losses so that in future the company may safeguard the interest of its shareholders and debenture holders. Number two, when the company is overcapitalized, the assets shown in the balance sheet do not represent completely the capital of the company, and the assets have been shown in the balance sheet at a value which is higher than their actual value, or we can say it is overvalued. Third point, the market value of the shares of the company is not attractive for the potential investor. It means if anyone wants to invest in the company, he finds the company to be unattractive. Fourth, the liabilities are more than the assets. If the company has been incurring losses for several years, the value of the assets may be less than the liabilities. And the fifth one, the capital gearing of the company is not proper, and it is necessary to bring changes in this. Now let me explain the whole thing in a holistic manner. You know, in case of sole proprietorship or individuals or partnership, if there are profits, they are credited to the capital accounts. If there are losses, they are debited to the capital accounts. The capitals increase or decrease accordingly. But in case of a company, if there will be profit, they will be shown as a surplus in the balance sheet on the liability side. They are not added to the capital. Similarly, if there are losses, the losses are not deducted from the capital. They will be shown on the asset side under the heading miscellaneous expenditure not taken or accumulated losses. It may be one of the reasons. Second reason, you don't have profits. It means the company has suffered heavy losses in the past several years. When the company suffers heavy losses, they don't charge depreciation in the profit and loss account. It means if the value cost of the asset is 1 lakh and the company have charged depreciation 30,000, the asset will be shown at a figure of 70,000.
But if you don't charge depreciation, the losses will be less, the value of the assets will be more. It means the assets are not shown at the realistic value. The real value of the asset is much higher. Sorry, I repeat, the real value of the asset is much lower than the actual value which is shown in the balance sheet. So in all such cases, what we have to do, we have to reorganize the company. How we can reorganize the company? We will do the reduction of the capital. It will be like the shareholders will lose some of their rights. The creditors may be asked, requested to lose some of their rights. The debenture holders may be requested to lose some of their rights. And whatever money is accumulated by these methods, then we have to write off the losses. And the company's balance sheet will be shown at its true value, so that in case the company is earning less amount of profit, the lower capital can be. Now what we have to, as per section 61 to 60 of the Companies Act 2013. The first point is increase in share capital by issue of new shares. If the company decides to increase the capital, then it can do it by making necessary formalities, by passing the resolution. It must be permitted by the articles, and they have to make the necessary journal entry. Regarding the journal entry, just I will repeat here, you must be knowing about it. In case of increase of the share capital, first entry, bank account debit to equity share application allotment account. In case it is preference share, bank account debit to preference share application and allotment account. Then for allotment of the shares, it will be equity share application allotment account debit to equity share capital account, or preference share application allotment account debit to preference share capital account. The second point is consolidation of shares. What is consolidation? We consolidate shares of lower denomination are converted into shares of higher denomination. उदाहरण के लिए अगर आपके शेयर्स की फेस वैल्यू 2 रुपीज का है, तो आप 2 रुपीज के शेयर्स को कंसोलिडेट करके 10 रुपीज के शेयर्स में कर देंगे। मान लीजिए किसी कंपनी के पास जो टोटल शेयर कैपिटल है वो 2 लाख रुपए का है। 2 लाख रुपए कैसे है, ध्यान दीजिए। 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹2 ईच फुल्ली पेड। इसका मतलब 1 लाख शेयर्स है, 2 रुपए का एक शेयर है, टोटल कैपिटल 2 लाख रुपए का, पेड अप कैपिटल 2 लाख। द कंपनी डिसाइड्स टू कंसोलिडेट the 1 lakh shares of 2 each fully paid into 20,000 shares of 10 each fully paid। देखिए टोटल वैल्यू चेंज नहीं होगा। 1 लाख शेयर्स 2 रुपए पेड, टोटल वैल्यू 2 लाख रुपए। 20,000 shares 10 रुपए पेड, टोटल वैल्यू 2 लाख रुपए। So the value will not change, the value will remain the same। इसके लिए जनरल एंट्री ये भी हो सकता है वो फुल्ली पेड नहीं पार्टली पेड हो, तो उतना ही प्रोपोर्शन पेड अप कैपिटल का रहेगा। इसके इलस्ट्रेशन मैं आपको दिखाऊंगा, पहले ये थ्योरी कंप्लीट कर लो, उसके बाद इलस्ट्रेशन आपको दिखा दूंगा। नेक्स्ट इज सब डिविजन ऑफ शेयर्स। जैसे कंसोलिडेशन करते हैं
छोटे वैल्यू के शेयर्स को बड़ी वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं, उसी तरीके से सब डिवीजन का मतलब हायर डिनोमिनेशन। उदाहरण के लिए अगर आपके शेयर्स की फेस वैल्यू 2 रुपीज का है, तो आप 2 रुपीज के शेयर्स को कंसोलिडेट करके 10 रुपीज के शेयर्स में कर देंगे। मान लीजिए किसी कंपनी के पास जो टोटल शेयर कैपिटल है वो 2 लाख रुपए का है। 2 लाख रुपए कैसे है, ध्यान दीजिए। 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹2 ईच फुल्ली पेड। इसका मतलब 1 लाख शेयर्स हैं, 2 रुपए का एक शेयर है, टोटल कैपिटल 2 लाख रुपए का, पेड अप कैपिटल 2 लाख। The company decides to consolidate the 1 lakh shares of 2 each fully paid into 20,000 shares of 10 each fully paid। देखिए टोटल वैल्यू चेंज नहीं होगा। 1 लाख शेयर्स 2 रुपए पेड, टोटल वैल्यू 2 लाख रुपए। 20,000 shares 10 रुपए पेड, टोटल वैल्यू 2 लाख रुपए। So the value will not change, the value will remain the same। इसके लिए जनरल एंट्री ये भी हो सकता है वो फुल्ली पेड नहीं पार्टली पेड हो, तो उतना ही प्रोपोर्शन पेड अप कैपिटल का रहेगा। इसके इलस्ट्रेशन मैं आपको दिखाऊंगा, पहले ये थ्योरी कंप्लीट कर लो, उसके बाद इलस्ट्रेशन आपको दिखा दूंगा। नेक्स्ट इज सब डिविजन ऑफ शेयर्स। जैसे कंसोलिडेशन करते हैं, छोटे वैल्यू के शेयर्स को बड़ी वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं, उसी तरीके से सब डिवीजन का मतलब यह है बड़ी वैल्यू के शेयर्स छोटी वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं। ए कंपनी में सब डिवाइड all or some of its shares of higher denomination into lower denomination। जैसे मैंने एग्जांपल लिया था, कंपनी का शेयर कैपिटल है 1 लाख शेयर्स ऑफ 2 ईच फुल्ली पेड, 2 लाख रुपए। इसका मतलब क्या है, 1 लाख नंबर ऑफ शेयर्स है, वैल्यू 2 रुपए है। उसको हमने 1 लाख को 2 लाख शेयर्स में सब डिवाइड कर दिया। इसका मतलब 2 रुपए जो फेस वैल्यू था उसको 1 रुपए के शेयर्स में सब डिवाइड कर दिया। इसको इस तरीके से हम कह सकते हैं 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹2 each fully paid valuing ₹2 lakh has been subdivided into 2 lakh shares of ₹1 each valuing 2 lakhs। Whether it is consolidation or it is subdivision, the total value of the shares, that is total paid up value of the shares, will remain the same, वो चेंज नहीं होगा। कन्वर्शन ऑफ शेयर्स इनटू स्टॉक एंड स्टॉक्स इनटू शेयर्स। देखिए स्टॉक को शेयर्स में कन्वर्ट करेंगे, शेयर्स को स्टॉक में कन्वर्ट करेंगे। ये हम कैसे करेंगे, जो वैल्यू है वो उतना ही रहता है स्टॉक की, लेकिन शेयर्स में नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लिया था 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹2 ईच फुल्ली पेड, टोटल वैल्यू 2 lakhs। इसमें स्टॉक एक ही होगा, एक स्टॉक, उसकी टोटल वैल्यू 2 लाख रुपए रहेगी। स्टॉक्स फ्रैक्शन में भी हो सकते हैं, शेयर्स फ्रैक्शन में नहीं होते, स्टॉक फ्रैक्शन में भी हो सकते हैं। नेक्स्ट हमने ये देखना है, नेक्स्ट स्लाइड मैंने दिखा दिया आपको, शायद दिखाई दे रहा होगा ये, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल एज पर सेक्शन 66 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। इसमें हम कैपिटल को रिड्यूस करते हैं। रिड्यूस करने का मतलब कैपिटल को कम कर देते हैं।
देखिए, जब भी हम शेयर कैपिटल में रिडक्शन करेंगे, इसमें कुछ हमारी नेसेसरी फॉर्मेलिटीज हैं। क्या क्या फॉर्मेलिटीज हैं? शेयर कैपिटल को रिड्यूस करने से पहले हमें क्रेडिटर्स का इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना होगा। जो भी हमारे क्रेडिटर्स हैं या बोरोइंग्स हैं, वो शेयर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो इसके लिए हमें नेसेसरी अथॉरिटीज का परमिशन लेना पड़ता है, जिसमें कंपनी लॉ बोर्ड का भी परमिशन होगा और क्रेडिटर्स का भी परमिशन होगा। स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। जब भी मैं रिडक्शन की बात कर रहा हूँ, आप ये मान के चलिए ये सारी फॉर्मेलिटीज को हम पूरी कर रहे हैं, उसके बाद ही हम कर पाएंगे। सबसे पहला पॉइंट है extinguishing or reducing the liability of the shareholders in respect of unpaid amount on the shares held by them। इसका मतलब बड़ा साफ है, जो भी शेयर होल्डर्स की अनपेड अमाउंट की लाइबिलिटी है, उसको एक्सटिंग्विश कर देंगे या उसको रिड्यूस कर देंगे। उसको खत्म भी कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। अब मान लीजिए एक कंपनी के शेयर कैपिटल है, मैं छोटा उदाहरण ले रहा हूँ, 1 lakh shares of 10 each, 6 rupees called up and paid up। इसका मतलब paid up amount 1 lakh shares of 10 each, 6 rupees called up and paid up। 1 लाख शेयर 6 के हिसाब से 6 लाख रुपए पेड अप वैल्यू है। 4 लाख अनकॉल्ड, 4 रुपए पर शेयर हमने मांगा नहीं है, दैट इज अनपेड अमाउंट। उस अनपेड अमाउंट को हमें खत्म करना है, एक्सटिंग्विश करना है। इसका मतलब ये होगा वो शेयर होल्डर्स बाकी 4 रुपए देने के लिए लायबल नहीं होंगे। ये तभी पॉसिबल होगा when their unpaid amount on the shares held by them is reduced। इसमें कंपनी का शेयर कैपिटल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पेड अप कैपिटल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ऑथराइज्ड कैपिटल कम हो जाएगा। जो क्रेडिटर्स इस बात पर भरोसा कर रहे थे कि 4 रुपए इन केस ऑफ लिक्विडेशन कंपनी के शेयर होल्डर्स पे करेंगे, तो उनका इंटरेस्ट अफेक्ट होगा। तो नेसेसरी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है पेइंग ऑफ एनी पेड अप शेयर कैपिटल व्हिच इज इन एक्सेस ऑफ इट्स रिक्वायरमेंट। कंपनी के पास पैसा बहुत है, पेड अप कैपिटल ज्यादा है, वो ठीक से यूज नहीं कर पा रहे हैं, उनको कोई प्रॉफिटेबल वेंचर नहीं दिखाई दे रहा है जहां पर वो उसको यूज कर सके। उस केस में जो एक्सेस कैश पड़ा हुआ है उसको कंपनी वापस कर सकती है। इसमें जो नेसेसरी फॉर्मेलिटीज है वो पूरा करना पड़ेगा। उसको करने के बाद कंपनी पैसा वापस करेगी। इसके लिए क्या जनरल एंट्री होगा वो मैं आपको नेक्स्ट इलस्ट्रेशन, जब ये स्लाइड्स खत्म कर लूंगा उसके बाद आपको बताऊंगा। कैंसलिंग एनी पेड अप शेयर कैपिटल व्हिच इज लॉस्ट और अंडर रिप्रेजेंटेड बाय अवेलेबल एसेट्स। ये मेन कंसिडरेशन है जिसके बारे में हम समझेंगे। जो शेयर होल्डर्स हैं उनका पेड अप कैपिटल मान लीजिए 10 रुपीज है, उसको हम 8 रुपए कैंसिल कर देते हैं, 2 रुपए रख देते हैं। इसका मतलब वो 8 रुपए अपना छोड़ देंगे। उन्होंने कंपनी को दिया हुआ है, देखिए इसमें दिया नहीं था, वो छोड़ा है, अनपेड अमाउंट था। इसमें जो उन्होंने दिया था हमने वापस कर दिया। ना पहला पॉइंट में शेयर होल्डर्स को कोई लॉस हुआ है, ना सेकंड पॉइंट में शेयर होल्डर्स को कोई लॉस हुआ। इसमें शेयर होल्डर्स को रियल लॉस होगा। एक तरीके से आप ये समझ लीजिए, जब मैं रिकंस्ट्रक्शन का प्रोसेस बताऊंगा तब ये सारा समझा दूंगा आपको कि शेयर होल्डर्स कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे, डिबेंचर होल्डर्स कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे, ये सब चीजें इकट्ठा जो पैसा होगा
उससे हम ओवर वैल्यूड एसेट्स को राइट ऑफ करेंगे, लॉसेस को राइट ऑफ करेंगे। नेक्स्ट, मेथड्स ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। इनके शेयर द स्क्रीन, स्क्रीन ठीक नहीं है, दोबारा शेयर कर दो। ठीक है, अच्छा ठीक है, आ गया क्या? स्टॉप शेयरिंग आ रहा है। हाँ ठीक है, बढ़िया है, बढ़िया है। ठीक है, ये स्क्रीन गायब कैसे हो जाता है? नहीं नहीं ठीक है, लाइव ही रहता है, स्क्रीन हमेशा लाइव रहता है। ठीक है, करिए। ठीक है। There are two methods of internal reconstruction. One, there is no surrender of shares. इसका मतलब शेयर होल्डर्स अपने शेयर को सरेंडर नहीं करेंगे, उनकी वैल्यू कम कर दी जाएगी। दूसरा, सरेंडर ऑफ शेयर्स। मैं दोनों के बारे में आपको जनरल एंट्रीज बताऊंगा। लेट अस स्टार्ट वन बाय वन। यह है रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। जब भी हम रिकंस्ट्रक्शन करेंगे, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट बनाएंगे, इसमें आप देख पाएंगे दो साइड्स हैं, एक डेबिट साइड है, एक क्रेडिट साइड है। इसमें हो सकता है जो 2 है वो नहीं दिख रहा है, उससे कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा आपको। डेबिट साइड में पर्टिकुलर से पैसा हमारे पास कहां से आता है, पैसा हम कहाँ यूज करते हैं। क्रेडिट साइड में पैसा हमारे पास कहां से इकट्ठा होता है। इसको थोड़ा और छोटा करना है ताकि आपको पूरा स्क्रीन दिखेगा। अब ये फॉर्मेट ठीक है। देखिए, इक्विटी शेयर होल्डर्स कुछ पैसा छोड़ देंगे, इसका मतलब वी हैव टू रिड्यूस द इक्विटी शेयर कैपिटल। सिमिलरली प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कुछ पैसा अपना छोड़ देंगे। एक्चुअली ऑल दे विल सैक्रिफाइस, equity shareholders will sacrifice some of their claim, so that you can write here. Preference shareholders may sacrifice some of their claim, that you will write here. Debenture holders may sacrifice some of their claim, that will be written here. Then other liabilities like creditors, outstanding expenses, they will also write here. Then if we increase the value of the asset, मान लीजिए कुछ एसेट ऐसे हैं जिनकी वैल्यू कम दिखाई गई है बैलेंस शीट में, या आप अंडर वैल्यूड बोल रहे हैं, उन एसेट्स की वैल्यू हम बढ़ाते हैं। तो इन सब चीजों से पैसा इकट्ठा होगा। उन पैसों से जो एसेट्स को कम करेंगे, ओवर वैल्यूड है उसको कम कर देंगे। कुछ लाइबिलिटीज हो सकता है बढ़ाना पड़े, या ऐसे भी हो सकते हैं कुछ लाइबिलिटी बैलेंस शीट में दिखाई नहीं जा रही, वो लाइबिलिटी नई लाइबिलिटीज है, हमने रिकॉर्ड नहीं किया, उसको भी रिकॉर्ड करना पड़ सकता है। इंटेंजिबल एसेट्स को राइट ऑफ करेंगे, जैसे गुडविल रिटर्न ऑफ, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स रिटर्न ऑफ, इस तरीके से कोई भी राइट ऑफ करेंगे। पेटेंट्स राइट ऑफ करना है, ये सब इधर आ जाएगा। लॉसेस को राइट ऑफ करते हैं, एक्यूमुलेटेड लॉसेस को राइट ऑफ करेंगे, वो भी आ जाएगा। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस मैं बता चुका हूँ। क्रेडिट साइड में जितना पैसा इकट्ठा हुआ और उसमें से जितना हमने यूज कर लिया, बाकी कुछ बचेगा, उसको कैपिटल रिजर्व में ले जाएंगे। मान लीजिए इधर सबका टोटल आया 15 लाख रुपए, इधर 1 2 3 4 5 आइटम्स, इनका टोटल आया 13.5 लाख रुपए। इसका मतलब 1,50,000 हमारा फालतू है, सो दैट विल गो टू कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व मीन्स द डिफरेंस इफ एनी। अब आपके मन में सवाल आ सकता है, आप सवाल पूछेंगे, उससे पहले ही मैं आपको जवाब दे दूं कि लाइबिलिटीज अपना हिस्सा क्यों छोड़ेंगे, डिवेंचर होल्डर्स अपना हिस्सा क्यों छोड़ेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल अपना हिस्सा क्यों छोड़ेंगे। देखिए, इक्विटी शेयर होल्डर्स ओनर्स हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ओनर्स हैं, उन्होंने स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन बनाया। और डिवेंचर होल्डर्स हैं जिन्होंने कंपनी को पैसा उधार दिया हुआ है। अगर कंपनी डूब जाती है, उनका पैसा टोटल डूब जाएगा, तो उस सिचुएशन में
वो ये कह सकते हैं चलो भाई आप 80% ले लो, उनके सामने प्रपोजल रखा जाएगा, वो एग्री करेंगे तभी ये स्कीम बनती है। जो स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैं आपको डिटेल में उसके बारे में नहीं बताऊंगा, लेकिन जब तक डिवेंचर होल्डर्स क्रेडिटर्स एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक स्कीम नहीं बनेंगे। ऐसे लाइबिलिटीज है, क्रेडिटर्स है, मान लीजिए क्रेडिटर्स हैं 20 लाख रुपए, उनको पता है अगर कंपनी नहीं काम करेगी उनका सारा पैसा डूब जाएगा। अगर कंपनी को हम रीऑर्गेनाइज कर देते हैं, हो सकता है वो थोड़ा थोड़ा करके काम करें और उनका काम चल जाए। आपको एक मैं उदाहरण दे रहा हूं, आप देख रहे हैं आजकल कोरोना वायरस के चक्कर में सब चीजें बंद है, लॉकडाउन है, कंपनियां बंद है। मुझे इसकी जानकारी है, बहुत सी कंपनियों ने जो वर्कर्स काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट तो कहती है उनको आप पैसा देंगे, आप उनको सैलरी देंगे, आप नहीं निकालेंगे, लेकिन कंपनी वालों ने वर्कर्स के साथ अपना अरेंजमेंट किया है। वो कहते हैं जब तक लॉकडाउन रहेगा हम आपको 60% 70% सैलरी देंगे, बाकी 30% आप अपना हिस्सा छोड़ दो। इसका मतलब यह है क्रेडिटर्स का कंसेंट से, वर्कर्स के कंसेंट से, जो सैलरीड एम्प्लॉय हैं उनके कंसेंट से वो पैसा छोड़ेंगे। आपने पीछे अखबार में पढ़ा भी होगा, कुछ एयरलाइंस ने अपने कंपनियों को अनपेड लीव पर भेजा है कि 2 दिन आप छुट्टी पर जाएंगे, 10 दिन छुट्टी पे जाएंगे, आपको सैलरी नहीं मिलेगी। जो भी हम रिकंस्ट्रक्शन बनाते हैं, स्कीम बनाते हैं, वो कंपनी की भलाई के लिए होता है। अगर कंपनी जिंदी रहेगी तो डिबेंचर होल्डर्स लायबिलिटीज को कुछ मिलेगा, अगर कंपनी जिंदी नहीं रहेगी उनका टोटल लॉस हो जाएगा। इसी की वजह से वो इस स्कीम को मान लेते हैं जब उनको ये महसूस होता है कि भाई हमें कुछ मिलेगा। आपने वो कहावत सुनी है, भागते चोर के लंगोटी अच्छी। एक तो आपके पास ऑप्शन है, आप 10,000 रुपए कंपनी से ले रहे हैं, आप 10,000 के 10,000 छोड़ दें, कंपनी आपको 2,000 रुपए दे देंगे, अरे 2,000 तो ले लो, बाद में कंपनी की अच्छी हालत होगी तो बाकी भी मिल जाएंगे। तो इसीलिए ये स्कीम लोग मान लेते हैं। नेक्स्ट, अकाउंटिंग एंट्रीज हम क्या करेंगे, नो सरेंडर ऑफ शेयर्स। देखिए अकाउंटिंग एंट्रीज इसमें लिखा हुआ है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान ये देना है कि वो जैसे पूरा फॉर्मेट में नहीं है, लेकिन इसको आप समझने की कोशिश करें, मैं समझाता हूं। सबसे पहला नंबर 1, इक्विटी शेयर होल्डर्स एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स द सरेंडर ऑफ सम ऑफ देयर क्लेम्स। इसका मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल को हम रिड्यूस करते हैं, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को रिड्यूस करते हैं, उसके लिए एंट्री क्या होती है। इसमें ये कंबाइंड एंट्री बना रखी है, मैं इसको पढ़कर बता रहा हूँ, आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट ओल्ड डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट न्यू टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। इस एंट्री को मैं स्प्लिट कर रहा हूँ, आप लिखना चाहें तो लिखिए। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट ₹10 ब्रैकेट में अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल न्यू मीन्स ₹7 टू रिकंस्ट्रक्शन ₹3। इसका मतलब क्या है, 10 रुपए का शेयर कैपिटल था, 10 रुपए का शेयर कैपिटल को हमने 7 रुपए में कन्वर्ट किया और 3 रुपए रिकंस्ट्रक्शन में चले गए। सिमिलरली प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट ओल्ड ₹100 डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल न्यू ₹80 टू रिकंस्ट्रक्शन ₹20। इसका मतलब इक्विटी शेयर होल्डर्स ने जो 10 रुपए की वैल्यू था उसका नया वैल्यू 7 रुपए का हुआ, 3 रुपए पर शेयर उन्होंने छोड़ दिए। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो ₹100 का था, उस नया कैपिटल का वैल्यू 80 रुपए हुआ, बाकी 20 रुपए उन्होंने छोड़ दिए। ऑफ कोर्स necessary narration will be given at the end of the entry.
जितने भी जनरल एंट्रीज मैं बोल रहा हूँ सबके आगे आपको नेसेसरी नरेशन लिखना पड़ेगा। नरेशन में आप कुछ मत घबराइए, जो आपने ट्रांजेक्शन किया उसका सेंटेंस के रूप में सिंपली लिख दीजिए। इसमें इक्विटी शेयर होल्डर्स ने कुछ हिस्सा छोड़ा, कुछ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ने अपना हिस्सा छोड़ा, तो वो कैपिटल उनका कम हो गया। सेकंड, और कैंसिलेशन ऑफ एरियर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड। देखिए एरियर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड वो लाइबिलिटी में नहीं दिखा रखा है, इसलिए उसको कैंसिल करने के लिए कोई भी एंट्री नहीं करेंगे। कंपनी डिसाइड करेगी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को एरियर्स, एरियर्स का क्या मतलब है? पिछला बकाया रकम, एरियर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का डिविडेंड का पिछला बकाया रकम कंपनी ने कैंसिल कर दिया, इसका मतलब उनको वो डिविडेंड नहीं मिल पाएगा। तीसरा है when appreciation in the value of the assets, property, plant and equipment is there, जो इंडिविजुअल एसेट अकाउंट को डेबिट करेंगे, रिकंस्ट्रक्शन के अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। अब इसमें देखिए रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट मैंने यूज किया है, कुछ ऑथर्स इसको कैपिटल रिडक्शन अकाउंट भी बोलते हैं। चाहे आप रिकंस्ट्रक्शन बोले चाहे कैपिटल रिडक्शन बोले, एक ही बात है, टेक्निकली दोनों एक ही चीज है, बाकी कोई बहुत अंतर नहीं है। ये थर्ड एंट्री ये समझ लीजिए, जैसे कंपनी के पास लैंड है, लैंड की वैल्यू 10 लाख है। लैंड हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट में दिखाई गई है, अगर आज कंपनी उस लैंड को बेचती है उसकी कीमत 2 करोड़ रुपए है, कंपनी उसकी वैल्यू में एप्रिशिएट करती है। देखो डेप्रिशिएशन का मतलब वैल्यू कम करना, एप्रिशिएट करने का मतलब वैल्यू बढ़ाना। कंपनी जो लैंड की कीमत 10 लाख रुपए थी उसको 2 करोड़ कर दिया, तो इसमें कंपनी एंट्री करेगी लैंड अकाउंट डेबिट 1 करोड़ 90 lakhs टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट 1 करोड़ 90 lakhs। ये जो इंडिविजुअल दिखा रखा है इसका मतलब यह है जो भी एसेट्स की वैल्यू बढ़ाएंगे उसकी एंट्री इंडिविजुअली करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, when the amount of liabilities is reduced or they make sacrifices, क्रेडिटर्स अपना हिस्सा छोड़ते हैं या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अपना हिस्सा छोड़ते हैं, जो भी है वो अपना हिस्सा छोड़ते हैं, तो आप लिखिए क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। क्रेडिटर्स अपना हिस्सा छोड़ेंगे, क्रेडिटर्स अकाउंट को डेबिट करेंगे, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। नेक्स्ट, व्हेन ओल्ड डिवेंचर्स sacrifice or reduce and issue new debentures। ये देखिए फिफ्थ एंट्री, पुराने डिवेंचर्स हैं 100 रुपीज का, वो 100 रुपए का डिवेंचर को 50 रुपए कर देते हैं, वो 50 रुपए छोड़ देते, तो डिवेंचर अकाउंट 100 रुपी डेबिट टू न्यू डिवेंचर 50 रुपीज टू रिकंस्ट्रक्शन 50 रुपीज। इसमें एक चीज का और ध्यान रखिए, हम क्या करते हैं जो डिवेंचर्स हैं उनको एक फिक्स रेट से इंटरेस्ट मिलता है। अगर कंपनी अपना हिस्सा छोड़ेगी, मान लीजिए पहले थे 10% डिवेंचर्स और अब हम डिवेंचर का इंटरेस्ट बढ़ा के 12% कर रहे हैं, अगर हम डिवेंचर की वैल्यू कम करते हैं तो हो सकता है कंपनी उसका इंटरेस्ट रेट बढ़ा दे, ताकि डिवेंचर होल्डर्स को कुछ तसल्ली हो कि हमारा लॉस बहुत ज्यादा नहीं होगा। तो इसमें आप एंट्री करेंगे 10% डिवेंचर्स 100 रुपी अकाउंट डेबिट टू 12% न्यू डिवेंचर्स 50 rupees account to reconstruction account। Next entry, when the payment of liabilities and arrears of preference dividend
अगर हम लाइबिलिटी की पेमेंट कर देते हैं, कैश पेमेंट कर देते हैं या प्रेफरेंस डिविडेंड का एरियर्स को पेड करते हैं, तो रेलेवेंट लाइबिलिटी अकाउंट या लाइबिलिटी अकाउंट इंडिविजुअली डेबिट इक्विटी शेयर कैपिटल या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट टू बैंक अकाउंट। इसमें देखिए कैपिटल को ना करके शेयर होल्डर्स अकाउंट करेंगे। जब भी हम डिविडेंड की पेमेंट करेंगे तो शेयर होल्डर्स को ही देंगे। नेक्स्ट, when the value of the assets are reduced and fictitious assets losses are written on, तो मैंने आपको रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में बताया था, अगर आपको याद होगा, देखो रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट वैल्यू ऑफ द एसेट्स को कम किया तो उसकी एंट्री ये बनेगी, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट, टू प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट, टू गुडविल पेटेंट्स ट्रेडमार्क अकाउंट, PPE account, PPA plant property and equipment, PPA plant property and equipment account to current assets, कैश और बैंक नहीं होगा, बाकी सब assets आ जाएंगे। Next entry, when the balance of the reconstruction account is transferred to capital, अगर कोई बैलेंस बचेगा, इसमें देखिए कैपिटल रिजर्व में हमने ट्रांसफर किया है। अगर आपको याद है, मैंने बताया था ये टोटल 15 लाख रुपए था, ये 13,50,000 का टोटल हुआ, 1,50,000 हमने था, तो इसमें एंट्री आ जाएगी रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट 1,50,000 टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 1,50,000। आई होप ऑल द एंट्रीज आर क्लियर। नेक्स्ट, व्हेन सरेंडर ऑफ शेयर्स इज देयर, इसमें क्या होता है, इक्विटी शेयर्स सरेंडर कर दिए जाते हैं। जितने शेयर सरेंडर होते हैं उसमें से हम यूज कर लेते हैं, यूज करने के बाद जो बचेगा उसको कैंसिल कर देते हैं। पहली एंट्री, इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स आर सबडिवाइडेड, इक्विटी शेयर कैपिटल ओल्ड अकाउंट डेबिट, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ओल्ड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल न्यू अकाउंट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल न्यू अकाउंट। ये एंट्री है सब डिविजन की। जैसे 10 रुपए का शेयर 2 रुपए में कन्वर्ट कर दिया, 100 रुपए का शेयर 10 रुपए में कन्वर्ट, उसकी एंट्री होती है। जब इक्विटी शेयर होल्डर्स अपना हिस्सा सरेंडर करेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर सरेंडर अकाउंट, एक अकाउंट हमारा बनेगा शेयर सरेंडर अकाउंट, उसमें जो वैल्यू सरेंडर की गई है उसको क्रेडिट कर देंगे। अब हम उसको यूटिलाइज करेंगे, शेयर सरेंडर जितना हमारे पास सरेंडर शेयर्स हैं उसको यूटिलाइज कर देंगे शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इसको हम रीइश्यू करते हैं। किसको रीइश्यू करेंगे? फॉर डिस्चार्जिंग द लायबिलिटी। मान लीजिए क्रेडिटर्स हैं 2 लाख रुपए का, उसको हमने कैंसिल करके नए शेयर्स इश्यू कर दिया, तो जो क्रेडिटर्स है उसको कैंसिलेशन की एंट्री बनेगी, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिकंस्ट्रक्शन, बाद में शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। When the amount of liability is reduced, liability account debit to reconstruct, ये एंट्री मैंने आपको अभी बता दिया था। पहले ये एंट्री होती है, बाद में ये होती है, या पहले ये करेंगे बाद में ये करेंगे, एक ही बात है, एक ही दिन में दोनों एंट्री होती है। नेक्स्ट एंट्री, when appreciation of the value of the assets, property, plant and equipment, तो इंडिविजुअल प्लांट इक्विपमेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे, रिकंस्ट्रक्शन को क्रेडिट कर देंगे। नेक्स्ट इज अनयूटिलाइज्ड पोर्शन ऑफ द अमाउंट ऑफ शेयर सरेंडर। आपको याद होगा मैंने यहाँ बताया था, जो शेयर सरेंडर करते हैं जितना यूज कर लेंगे, बाकी जो बचेगा वो कैंसिल हो जाता है, उसकी एंट्री ये हो गई, when unutilized portion of the amount of share surrender account transfer to reconstruction account, share surrender account debit to reconstruction account। जब हम लायबिलिटी की पेमेंट करेंगे उसकी एंट्री लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, इंडिविजुअल एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कैश पेमेंट कर देंगे। When expenses written off
and recording of the new liabilities and provisions. Reconstruction account debit to reconstruction expense to liability to provision account. ये हमारा पहला जो पोर्शन था जिसमें रिकंस्ट्रक्शन के बारे में था वो सारा क्लियर हो गया। अब मैं इलस्ट्रेशंस लेने से पहले ये चाहूंगा कि आप अपने क्वेश्चंस पूछ लें, जो भी आप पूछना चाहें। मैं वीडियो ऑफ कर रहा हूं, माइक चालू है, आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। 5 मिनट आप क्वेश्चन पूछेंगे, उसके बाद हम जो भी नए ट्रांजैक्शन जर्नल एंट्री जो करें इसके बाद टेकअप कर लेंगे। अच्छा मिस्टर आनंद, ये क्लास को ब्रेक लगा दीजिए 5 मिनट, सवाल के लिए छोड़ दें, उनको इंस्ट्रक्शन दे दो, क्वेश्चन पूछ लेंगे बच्चे। सर आप स्क्रीन ऑफ कर दीजिए अपनी। स्क्रीन ऑफ कर दूं? ठीक है, यस ठीक है, स्क्रीन ऑफ कर दिया, उनको क्वेश्चन का इंस्ट्रक्शन दे दो। स्टूडेंट्स, पहले हम आपके क्वेश्चन आंसर्स लेते हैं,
वन बाय वन मैं क्वेश्चन आंसर्स ले रहा हूँ। आनंद स्टार्ट कर देंगे। आनंद लाइव है सर, लाइव है। ठीक है, मैं क्वेश्चंस लेता हूँ 2-4 मिनट में, उसके बाद फिर देखिए कुछ स्टूडेंट्स ने ये पूछा है पीपीटी या डॉक्यूमेंट फाइल जो भी है आपको शेयर कर दिया जाएगा, वो सारा अपलोड कर दिया जाएगा डैशबोर्ड पे, अभी प्रोसेस में है। कल वाले नोट नहीं मिले, वो भी आपको मिल जाएंगे। देखिए हम कर रहे हैं ये कोशिश, और आपको ये मिल जाएंगे। हो सकता है आज का दिन और लग जाए, ठीक है। नेक्स्ट इज इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन डील्स ओनली विथ चेंज इन द कैपिटल। देखिए कैपिटल रिडक्शन भी हो सकता है, कैपिटल बढ़ा भी सकते हैं, कंपनी का टोटल रिकंस्ट्रक्शन है। कैपिटल भी कम ज्यादा होगा, एसेट्स लायबिलिटी की वैल्यू भी कम ज्यादा होगी। अच्छा, स्क्रीन इज नॉट क्लियर, मेरा ख्याल है ये पहले का क्वेश्चन होगा, अब क्लियर हो गया होगा। बीच में 2 सेकंड के लिए नेटवर्क चला गया था, स्क्रीन नहीं आया था। अच्छा, व्हाट इज सेक्शन 66? सेक्शन 66 देखिए 60 से 66 तक है कैपिटल अल्ट्रेशन के बारे में। 66 बताता है रिडक्शन ऑफ कैपिटल। रिडक्शन ऑफ कैपिटल के लिए जो भी फॉर्मेलिटीज है वो हमें पूरी करनी पड़ेगी। जैसे कि मैंने बताया था, जो भी शेयर होल्डर्स के अनकॉल्ड कैपिटल है उसको एक्सटिंग्विश करना या रिड्यूस करना, एक्सेस कैपिटल को वापस करना है, पैसा फालतू है कंपनी के पास वो वापस कर देते हैं। तीसरा मैंने ये बताया था शेयर होल्डर्स के राइट्स को कम करना, 10 रुपए का पेडअप है उसको और कम कर देना, इस तरीके से। What if the balance sheet is on credit side of the reconstruction account? देखिए बैलेंस क्रेडिट साइड में कैसे आएगा, हम उतना ही राइट ऑफ कर सकते हैं जितने पैसे हैं। आप ये समझ लीजिए कोरोना वायरस के लिए मुझे कुछ खर्चा करना है, मैंने आप लोगों से पैसा मांगकर 10,000 रुपए इकट्ठे किए हैं, जो मैं डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ मैक्सिमम 10,000 कर सकता हूँ। अगर मैं 9,000 डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, 1,000 रुपए मेरे पास बचेंगे, वो कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। मैं 11 तो डिस्ट्रीब्यूट कर ही नहीं सकता ना, तो मेरे पास जितना होगा उससे कम दिया जाएगा। 8th पॉइंट ऑफ सरेंडर ऑफ शेयर्स। अच्छा 1 मिनट में इसको ले आता हूँ, 8th पॉइंट क्या चीज है उसके बाद ही मैं बता पाऊंगा। देखिए 8th पॉइंट ये है, मेरा ख्याल है when the expenses written off and recording of new liabilities and provisions। हम जो भी एक्सपेंसेस हैं, एक्सपेंसेस कौन से जो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में है उसको राइट ऑफ करते हैं, या जो एसेट्स की वैल्यू फालतू है उनको राइट ऑफ करते हैं। तो इसमें लिखेंगे रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंस अकाउंट, अगर कुछ है तो टू लायबिलिटीज अकाउंट टू प्रोविजन अकाउंट। ये आई होप दिस वुड बी क्लियर। अच्छा, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन द एंट्रीज ऑफ द न्यू डिबेंचर्स आर एक्सचेंज्ड? हाँ, मैं इस एंट्री को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए पुराने डिबेंचर कंपनी चेंज करके नए डिबेंचर देती है, इसमें 2 तरीके से होता है। एक कंपनी डिबेंचर होल्डर्स का राइट, इंटरेस्ट राइट को चेंज करती है, दूसरा उसके वैल्यू को चेंज करती है। मान लीजिए पहले कंपनी के रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, 100 रुपए का डिबेंचर है, कंपनी उनको कहती है आप 100 की जगह 80 रुपीज एक्सेप्ट करेंगे, तो इसमें एंट्री होगा 10% डिबेंचर 100 रुपी अकाउंट डेबिट टू 10% न्यू डिबेंचर्स 80 अकाउंट टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट 20 रुपीज। वो जो डिबेंचर सर्टिफिकेट्स हैं वो पुराने कैंसिल हो जाएंगे, उसके बदले नए सर्टिफिकेट इशू हो जाएंगे। अगर कंपनी नए सर्टिफिकेट इशू नहीं भी करती और कंपनी सिर्फ रेजोल्यूशन की कॉपी डिबेंचर होल्डर को भेज देती है, या आजकल डिबेंचर्स मान लीजिए डीमैटेरियलाइज्ड फॉर्म में है, तो वो ऑटोमेटिक हो जाएगा।
दूसरा रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज करना, 10% डिवेंचर अकाउंट 100 डेबिट टू 12% डिवेंचर अकाउंट 80 न्यू टू रिकंस्ट्रक्शन 20। पहले 100 रुपए का डिवेंचर था, 10% इंटरेस्ट था, अब नया डिवेंचर 80 रुपए का हो जाएगा और उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% हो जाएगा, तो उससे उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो डिवेंचर सर्टिफिकेट फिजिकली चेंज करें या ना करें इतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एंट्री क्लियर होनी चाहिए। कैश फ्लो कल खत्म हो गया था, मुझे उतना ही समय मिला था, उसमें कुछ इलस्ट्रेशंस हैं एक दो, बाकी जो मैंने पॉइंट्स एक्सप्लेन किए थे उनको लेकर इलस्ट्रेशंस आपको करना पड़ेगा। लास्ट एंट्री, अच्छा सरेंडर ऑफ शेयर्स का लास्ट एंट्री, देखिए जो भी पैसा हमारे रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में डेबिट हुआ है उसको हम यूज करेंगे, किसके लिए यूज करेंगे? फॉर रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस, फॉर अदर लाइबिलिटीज, राइट ऑफ करने के लिए, कुछ पेमेंट करने के लिए, उसके लिए एंट्री करेंगे रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंस अकाउंट टू लाइबिलिटी अकाउंट टू अदर्स अकाउंट। New debentures are issued for old and sacrifice also made by the debenture. Please explain the entry. देखिए ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। पुराने डिबेंचर्स मान लीजिए 100 रुपए का है, वो अपना हिस्सा 20 रुपए 30 रुपए छोड़ देते हैं, उसके बदले उनको नया डिबेंचर मिल जाएगा। पहले उनकी वैल्यू 100 रुपए की थी, कंपनी 100 रुपए वापस करती, अब उनकी वैल्यू 70 की हो गई, कंपनी 70 रुपए देके। सब डिवीजन, देखिए बड़ी सिंपल सी चीज है, सब डिवाइड करना। मान लीजिए आपके पास एक आइटम है, एक शेयर है 10 रुपए का, आप उसको 5 शेयर में विभाजित करते हैं, 2 रुपए का एक शेयर बन जाएगा। इसका मतलब पहले एक शेयर उसकी वैल्यू 10 रुपए थी, अब उसकी वैल्यू 5 शेयर 2 रुपए वाली हो जाएगी। या आप सब डिवाइड करते हैं 10 शेयर्स ऑफ 1 ईच, दैट इज सब डिविजन। बड़े को छोटे हिस्सों में परिवर्तित करना। In reconstruction, credit side only sacrificed amount is recorded, and can we compare it with revaluation? में revaluation एक अलग चीज है, रिकंस्ट्रक्शन या कैपिटल रिडक्शन अलग है, रिवैल्यूएशन इसमें नहीं है। स्लाइड्स आपको अपलोड कर लिया जाएगा, आपको डैशबोर्ड से मिल जाएगा। If there is any loss by fire ड्यूरिंग द ईयर ऑफ रिकंस्ट्रक्शन, सो देखिए लॉस बाय फायर हो या कोई भी लॉस हो, जितने भी एक्यूमुलेटेड लॉस है सबका इम्पैक्ट एक ही है, उसको हम धीरे धीरे राइट ऑफ करेंगे, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट से राइट ऑफ करेंगे। एक बार प्रपोज डिविडेंड की एंट्री बता दूं। प्रपोज डिविडेंड तो कल मैंने बताया था कैश फ्लो में, इसमें मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं आप सबकी भलाई के लिए। अगर प्रपोज डिविडेंड बैलेंस शीट में लिखी गई है तो जो पिछले साल का प्रपोज डिविडेंड है उसका पेमेंट करेंगे, उसको एप्लीकेशन ऑफ फंड्स में शो करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ कैश में दिखाएंगे, जो इस साल का डिविडेंड प्रपोज किया है वो P&L में ऐड करेंगे। मेरे ख्याल है we have taken all the questions. Now let me go to for illustrations. अच्छा स्टूडेंट्स, अब मैं जो आपको थ्योरी बताई है उसके कुछ इलस्ट्रेशन बता देता हूँ, उसके बाद हम फिर इसको ले लेंगे। ये I hope it is all visible. These are all illustrations on alteration of the share capital. इंक्रीज इन शेयर कैपिटल, ये एंट्री लिखी हुई है, इसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है।
बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। इसमें मैंने सिर्फ शेयर एप्लीकेशन लिखा है। अगर इक्विटी शेयर है तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट लिख देंगे, अगर प्रेफरेंस शेयर है तो प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट लिख देंगे। सेकेंड आइटम इज कंसोलिडेशन ऑफ शेयर्स। इसका देखिए क्वेश्चन, A Limited with a share capital of ₹2 lakhs divided into 10,000 equity shares of 20 each, on which 15 paid up, decided to consolidate 5 equity shares of ₹20 each into 1 equity share of 100 each. इसका मतलब ये जो इक्विटी शेयर्स हैं 10,000 इक्विटी शेयर्स 20 रुपीज के थे, इन्होंने 5 शेयर्स को एक शेयर बना दिया। अगर 5 शेयर को एक शेयर बनाएंगे तो 10,000 डिवाइडेड बाई 5 2,000 शेयर्स ऑफ 100 ईच हो जाएगा। देखिए 10,000 शेयर्स ऑफ 20 ईच 2 lakhs, 2,000 शेयर्स ऑफ 100 ईच 2 lakhs। पेड़ा वैल्यू 15 रुपीज था। अगर इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 75 रुपए का हो जाएगा नया जो पेड़ा वैल्यू। आफ्टर कंसोलिडेशन A Limited will have the same share capital. Paid up share capital वही रहेगा। Equity share capital ₹20 account debit to equity share capital ₹100, 1,50,000, 1,50,000। अब इसमें नरेशन देखिए क्या लिखेंगे, कंसोलिडेशन ऑफ 10,000 equity shares of ₹20 each, 15 paid up, consolidated into 2,000 equity shares of 100 each, 75 paid up। सिंपल सी बात है, नरेशन अब वो समझ लीजिए जो आप समझते हैं हिंदी में। 10,000 इक्विटी शेयर्स 20 रुपए वाले जिसमें 15 रुपए पेड अप था, उसको हमने 2,000 इक्विटी शेयर्स 100 रुपए का 75 पेड अप में कन्वर्ट कर दिया। पहले थे 10,000 शेयर्स ऑफ 20 each, 15 पेड अप। अब आफ्टर कंसोलिडेशन बन गया 2,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 each, 75 पेड अप। दूसरा सब डिवीजन, किसी स्टूडेंट ने सब डिवीजन का भी सवाल पूछा था। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान दे दो। A Limited with a capital of 5 lakhs divided into 5,000 equity shares of 100 each, on which 75 paid up, decided to subdivide the shares into 50,000 shares of 10 each। पहले था 5,000 shares of 100 each, अब किया 50,000 shares of 10 each। इसका मतलब ऑथराइज्ड कैपिटल 5 लाख था पहले, अब भी 5 लाख है। उसकी वैल्यू थी 75। अगर 100 रुपये शेयर्स था, 75 पेड अप था, और 10 रुपये शेयर्स होगा तो 7.5 पेड अप होगा। अब देखिए एंट्री, इक्विटी शेयर कैपिटल 100 डेबिट 375 टू इक्विटी शेयर कैपिटल 10। नरेशन क्या है, सब डिविजन ऑफ 5,000 equity shares of 100, 75 paid up into 50,000 equity shares of 10 each, 75 paid up। 1 मिनट का थोड़ा मैं ब्रेक ले रहा हूँ, 1 मिनट बस। Yes, we can start now. सब डिविजन कंसोलिडेशन, ये दोनों पॉइंट आई होप समझ आ गया है। तीसरा पॉइंट है इसके बाद कन्वर्शन ऑफ शेयर्स इनटू स्टॉक एंड स्टॉक इनटू शेयर्स। शेयर्स को स्टॉक में कन्वर्ट करना है और स्टॉक को शेयर्स में, दोनों चीजें पॉसिबल है। एग्जाम्पल, R Limited had 10 lakh
authorized capital divided into shares of 100 each, out of which देखिए आर लिमिटेड की 10 लाख रुपीज का ऑथराइज कैपिटल था जो डिवाइड किया था 100 रुपए के शेयर्स में। इसका मतलब ये हो जाएगा 10,000 शेयर्स ऑफ 100 इज 10 लाख, out of which 8,000 shares were fully paid up। इसका मतलब 8,000 शेयर फुल्ली पेड अप था, उसकी वैल्यू थी 8,000 इंटू 100, 8 लाख रुपए। 31/3 को ये पोजीशन थी 8 लाख रुपए पेड अप वैल्यू। ऑन दिस डेट द कंपनी डिसाइडेड टू कन्वर्ट द इश्यूड कैपिटल इनटू स्टॉक। 31/3/2019 को कंपनी ने शेयर्स को स्टॉक में कन्वर्ट करने का डिसीजन लिया। तो उसमें देखिए इनसे क्या होगा। इक्विटी शेयर कैपिटल 8,000 into 100, 8 lakhs debit to equity stock account 8 lakh. Narration: conversion of 8,000 fully paid shares of 100 each into stock. इसी illustration में on 31st March 2020 the company reconverted the stock into shares of 10 each fully paid। पहले कंपनी ने क्या किया था, 8,000 शेयर्स 100 रुपीज वाले 8 लाख रुपए पेड वैल्यू थी, उसको स्टॉक में कन्वर्ट किया था। अब कंपनी ने इसको रिकन्वर्ट किया शेयर्स में। पहले शेयर्स की वैल्यू 100 रुपए थी, अब शेयर्स की वैल्यू 10 रुपीज आ जाएगा। इसका मतलब इक्विटी स्टॉक अकाउंट डेबिट 1 लाख तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1 लाख। रिकन्वर्सन ऑफ ₹8 lakh stock into 80,000 equity shares of 10 each fully paid up। 8 लाख के स्टॉक को 80,000 इक्विटी शेयर्स 10 रुपए में कन्वर्ट कर दिया। कैंसिलेशन ऑफ अनइश्यूड कैपिटल। अनइश्यूड कैपिटल को कंपनी ने कैंसिल किया। दिस कैन बी डन बाय पासिंग ए रेजोल्यूशन। दिस डज नॉट नीड एनी जर्नल एंट्री। इसके लिए जर्नल एंट्री की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जो पेड अप शेयर कैपिटल था पहले भी था, अब भी है, उतना ही रहेगा। जो अनइश्यूड कैपिटल था उसको कैंसिल किया। इसमें द डिक्रीज ओनली ऑथराइज्ड कैपिटल, पेड अप कैपिटल इज नॉट रिड्यूस्ड। अगर पेड अप कैपिटल रिड्यूस नहीं हुआ, इसके लिए जर्नल एंट्री नहीं करेंगे। इससे क्या होता है, लायबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर्स इज एक्सटिंग्विश्ड और रिड्यूस्ड in respect of any unpaid amount of the shares held. The shareholders are not required to pay the unpaid amount in future. उनको बाद में ये पैसा देना नहीं पड़ेगा। क्रेडिटर्स की सिक्योरिटी अफेक्ट होती है, इसलिए the uncalled capital is fully cancelled, the paid up amount remains the same, the partly paid up shares have been made fully paid up। इसमें हम करेंगे शेयर कैपिटल पार्टली पेड अप अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल फुल्ली पेड। एग्जांपल, ए लिमिटेड हैड ऑन 31st December 40,000 equity shares of 10 each, 6 called up। On 1st January 2020 the company decided to reduce these shares into 6 rupees fully paid। देखिए पहले क्या था, 40,000 शेयर्स थे, 10 rupees each, 6 paid up and called up। 40,000 शेयर्स 10 रुपए के थे, जिसमें 6 रुपए कॉल्ड अप और पेड अप। इसका मतलब टोटल वैल्यू जो था 40,000 इंटू 6, 40,000 इंटू 6 कितना होगा, 2,40,000। अब कंपनी ने क्या डिसाइड किया, टू रिड्यूस दीज शेयर्स इंटू 6 रुपीज फुल्ली पेड अप। जो 10 रुपए का शेयर 6 कॉल्ड अप था, उसको 6 रुपीज फुल्ली कॉल्ड अप एंड पेड अप बाय कैंसलिंग द अनपेड अमाउंट ऑफ 4। जो 4 रुपए अनकॉल्ड अमाउंट था उसको उन्होंने कैंसिल कर दिया। इसके लिए जनरल एंट्री होगी, इक्विटी शेयर कैपिटल पार्टली पेड अप अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल फुल्ली पेड अप 240। नरेशन, cancellation of unpaid amount of ₹4 per share
on 40,000 shares of 10 each to reduce them to 40,000 shares of 6 each fully paid up by special resolution so and so. देखिए ऐसे केसेस में जब भी हम ऐसे काम करते हैं, जब भी कैपिटल रिड्यूस करते हैं, स्पेशल रिजोल्यूशन होता है और उस रिजोल्यूशन का नंबर हमें देना होता है। नेक्स्ट, एक्सेस पेड अप कैपिटल इज पेड ऑफ। जो हमारा पेड अप कैपिटल था, एक्सेस था, हमारी जरूरत से अधिक था, उसको पेड ऑफ वापस कर देना। पेड ऑफ का मतलब रिफंड कर देना। द कंपनी पेड अप शेयर कैपिटल इज एक्सेस ऑफ रिक्वायरमेंट, अपनी रिक्वायरमेंट से ज्यादा है। कैपिटल इज नॉट एम्प्लॉयड प्रॉफिटेबली, वो प्रॉफिटेबली यूज नहीं कर पा रहे हैं। द कंपनी में डिसाइड टू रिफंड द एक्सेस अमाउंट आफ्टर नेसेसरी लीगल फॉर्मेलिटीज। जो भी आपको याद होगा, मैंने पहले भी कई बार बता चुका हूं, जो लीगल फॉर्मेलिटीज है उसको हमें पूरी करनी पड़ेगी, उसके बाद ही उसका पैसा वापस कर पाएंगे। बहुत बार ऐसा होता है कंपनी के पास अधिक पैसा है, कैश है, कंपनी काम जो करना चाहिए वो कर रही है, आगे कंपनी उन पैसों को यूज नहीं कर पा रही, तो आइडल कैश रखना उचित नहीं। तो कंपनी उस पैसे को शेयर होल्डर्स को वापस कर देती। आपको याद होगा बाई बैक ऑफ शेयर्स बताया था, बाई बैक भी कर सकती है कंपनी, शेयर्स वापस खरीद लेती है, लेकिन यहाँ पर बाई बैक नहीं है। कंपनी के पास जो पैसा है वो शेयर होल्डर्स को कुछ वापस कर देते हैं। एग्जाम्पल, सी लिमिटेड हैड ऑन 31 December 2019 rupees 8 lakh authorized capital divided into 80,000 shares of 10 each fully paid। कंपनी का जो शेयर कैपिटल था 8 लाख रुपीज का था, 80,000 shares of 10 each which are fully, all shares are fully paid, पूरे 8 लाख पेड अप कैपिटल। On 1st January 2020 the company decides to pay ₹3 per share and make the share 7 fully paid up। तो 10 रुपए का शेयर है, उसको 7 रुपए में कन्वर्ट करके बाकी 3 रुपए वापस कर उसकी एंट्री करते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल ₹10 अकाउंट डेबिट 8 lakhs to equity share capital ₹7 5,60,000 to equity shareholders 2,40,000। जो 10 रुपए का शेयर कैपिटल था उसको 7 रुपए का करके 8 लाख का 5/7 हो जाएगा, 2,40,000 सरप्लस है, उसको हम वापस कर देंगे। रिडक्शन ऑफ इक्विटी शेयर्स बाय मींस ऑफ रिफंड of ₹3 per share and making 80,000 shares 10 each fully paid up into 80,000 shares of 7 each fully paid up। उसके बाद हम पैसा वापस करेंगे। इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट 2,40,000 टू बैंक अकाउंट, रिफंड ऑफ एक्सेस कैपिटल। मैं ख्याल आपको समझ आ गया। कैंसलिंग द पेड अप शेयर कैपिटल which is lost, I'm sorry, मैं रिपीट कर रहा हूँ, कैंसलिंग द शेयर पेड अप कैपिटल which is lost or not represented by assets। इसका मतलब जो हमारा शेयर कैपिटल था वो है नहीं, वास्तव में वो एसेट्स बैकिंग नहीं है, इसका मतलब लॉसेस हमारी हो चुकी। तो इसमें एंट्री होगी रिडक्शन इन पेड अप वैल्यू, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन और रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। जो पेड अप वैल्यू है उसको कम कर देंगे। इसमें हम नॉमिनल वैल्यू भी, इसमें देखिए नॉमिनल वैल्यू कम नहीं करते। 10 रुपए का शेयर था, 2 रुपए कम कर दिया, 8 रुपए वैल्यू आ गई और 10 रुपए उसकी वैल्यू रहेगी, 2 रुपए मांग सकते हैं। इसमें हम क्या कर रहे हैं, रिडक्शन इन बोथ नॉमिनल वैल्यू एंड पेड अप वैल्यू। इसमें हम नॉमिनल वैल्यू भी कम करते हैं, पेड अप वैल्यू भी कम करते हैं। शेयर कैपिटल ₹10 अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल ₹2 टू कैपिटल रिडक्शन और रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट 8। इसका मतलब जो 2 रुपए, 10 रुपए का शेयर 2 रुपए में कन्वर्ट कर दिया, बाकी 8 रुपए हमने बचा दिए।
अब इसका इलस्ट्रेशन देख लीजिए। ये थोड़ा क्वेश्चन लंबा है, शायद आपको दिखाई दे रहा है या नहीं। ओके है सर। ठीक है, मैं बढ़ाने की सोच रहा था, थोड़ा बढ़ जाता तो। ठीक है, बेटर। स्क्रीन शेयर नहीं है सर। स्क्रीन शेयर नहीं है? अच्छा, मैं लेता हूँ स्क्रीन। ये स्क्रीन शेयर अपने आप चला जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मेरा ख्याल आपको दिखाई भी दे रहा है, ऑडियो भी आ रहा है। देखिए, ये इलस्ट्रेशन हम कर लेते हैं एक, उसके बाद है देन वी विल गो फॉर लिक्विडेशन, क्योंकि हमारे पास समय थोड़ा कम है। लेकिन जो हम कर रहे हैं ये टॉपिक तो अच्छी तरह कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि 100% ये क्वेश्चन आना ही आना है। एक क्वेश्चन तो 15-20 मिनट में इसको कर लेते हैं। द लेजर बैलेंस ऑफ एक्स लिमिटेड ऑन 31st March, fixed assets 7 lakhs, investment 10,000, stock and debtors 8,20,000, cash in hand 30,000, preliminary expenses 20,000, equity share capital 60% paid up 6 lakhs, 10% first debentures rupees 2 lakh, 12% second debentures 5 lakh, bank overdraft 50,000, trade creditors including Y for 8,50,000, 11,50,000, outstanding interest for 1 year on both type of debentures 80,000. Due to heavy losses, the following scheme of reconstruction is applicable. देखिए, नीचे एंट्रीज पढ़ने से पहले मैं ये चाहूंगा कि आप थोड़ा सा इसमें वर्किंग करो। ऊपर बैलेंस शीट के एसेट्स लायबिलिटी दिए हो, कंप्लीट बैलेंस शीट नहीं है। फिक्स एसेट्स 7 लाख एसेट साइड में आएगा, इन्वेस्टमेंट 10,000 एसेट साइड में आएगा। आप कागज पेंसिल निकालो और बैलेंस शीट को बनाओ। टी फॉर्म लो, टी फॉर्म में सिर्फ आप आइटम्स लिखो जो जो मैं बोल रहा हूँ। एफ ए एसेट साइड में 7 लाख, इन्वेस्टमेंट सेकंड आइटम 10,000, स्टॉक एंड डेटर्स 8,20,000, कैश इन हैंड 30,000, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 20,000। देखो, एसेट साइड में 5 आइटम, फिक्स्ड एसेट 7 लाख, इन्वेस्टमेंट 10,000, स्टॉक एंड डेटर्स 8,20,000, कैश इन हैंड 30,000, एक्सपेंसेस प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 20,000। टोटल करो, टोटल आना चाहिए 15,80,000 आना चाहिए। मैं गिन रहा हूँ, 7 लाख जमा 8 20, 15 20, 10 15 30, 15 60, 15 80। टोटल एसेट साइड का बनता है 15,80,000। आपने लिख लिया बैलेंस शीट में। अब लायबिलिटी साइड देखो, पहला आइटम इक्विटी शेयर कैपिटल 60% पेड 6 लाख, 60% पेड है, वैल्यू है 6 लाख। 10% फर्स्ट डिवेंचर्स 2 लाख, सेकेंड डिवेंचर्स 5 लाख। इसका मतलब टोटल अगर करोगे, पहले 6 लाख लिखो शेयर कैपिटल, फर्स्ट डिवेंचर्स लिखो 2 लाख, सेकेंड डिवेंचर्स लिखो 5 लाख, बैंक ओवरड्राफ्ट 50,000। फोर्थ आइटम क्रेडिटर से 11,50,000। यहां तक अगर टोटल करोगे 6 जमा 2 8 जमा 5 13, 11 50, 13 और 11 24 50, बैंक ओवरड्राफ्ट 25 लाख, और आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट हो गया 80,000। 25,80,000 ये हो गया एसेट साइड में, सॉरी लायबिलिटी साइड में टोटल हुआ 25,80,000। एसेट साइड का टोटल आपको याद है या भूल गए? 7 8 15 30 20 50 10 8, 15,80,000। इसका मतलब 10 लाख मिसिंग है। वो 10 लाख क्या है? एक्यूमुलेटेड लॉसेस।
ठीक है, मैं आपको 2 मिनट का समय दे रहा हूँ, आप एक बार बैलेंस शीट बना के या एक्यूमुलेटेड लॉसेस को बनाओ, ठीक है। बन गया बैलेंस शीट। लाइबिलिटी का टोटल है 25,80,000, एसेट का टोटल है 15 लाख। तो इसमें सबसे पहला काम है, बैलेंस शीट नहीं दिया है इसलिए बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा। अब देखिए इसका आंसर में अगर बैलेंस शीट बना रखी है, बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड, इक्विटी शेयर कैपिटल 60% paid up 6 lakhs, 10% first debentures 2 lakh, then 12% second debentures 5, बैंक ओवरड्राफ्ट 50, क्रेडिटर्स 1150, जिसमें वाई है 850, इसी में से आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 80,000। एसेट साइड में फिक्स्ड एसेट्स 7 लाख, इन्वेस्टमेंट्स 10,000, स्टॉक एंड डेटर्स 8,20,000, बैंक बैलेंस 20,000, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, एक मिनट, फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक एंड बैंक बैलेंस 30, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 20,000, ये थोड़ा सा टेढ़ा आ रहा है। देन प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंसिंग फिगर है 10 लाख। ये समझ आ गया, 10 लाख रुपए हमारा एक्यूमुलेटेड लॉसेस था। सबसे पहला काम हमने बैलेंस शीट बना लिया, उसके बाद इसको रिऑर्गेनाइज करेंगे। द फॉलोइंग स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन हैज बीन एग्रीड। The following scheme of reconstruction. Number 1, to make the existing shares of 100 each, equity shares fully paid up, and then reduce them to 20 each. Shares कितने हैं? Equity share capital 60% paid up 6 लाख रुपए। इसको जो 60% पेड अप का मतलब 60 रुपए पेड अप है, और 100 रुपए का शेयर है, 60% 60 रुपए हो गया, बाकी 40 रुपए पेड अप नहीं है। टू मेक द एग्जिस्टिंग शेयर ऑफ 100 इक्विटी फुल्ली पेड, इसको फुल्ली पेड करना। फुल्ली पेड कैसे करोगे? पार्टली पेड शेयर, 100 रुपए के शेयर में 60 रुपए आपके आ चुके हैं, 40 रुपए नहीं है। अब आप पहला चैप्टर याद करो, शेयर्स वाला, इश्यू ऑफ शेयर्स। 40 रुपए आपको कॉल करना पड़ेगा, उसका एंट्री लिखे, एंट्री दिया हुआ है बाद में, आप समझ लीजिए। इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 4 लाख टू शेयर कैपिटल 4 लाख। सेकेंड एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। मैं वहीं पर पहुंच रहा हूं आपको, देखिए। शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 4 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल 4 लाख, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल 4 लाख। 4 लाख रुपए का कॉल कर लिया, पहले ड्यू हुआ, बाद में हमें पैसा मिल गया। सेकेंड इसी में ही है, टू मेक द एग्जिस्टिंग 100 रुपी शेयर फुल्ली पेड, देन टू रिड्यूस देम टू 20। देखिए थोड़ा ध्यान से देखो, इसमें 220 है, बाई 20 है, मैं कर्सर ला रहा हूं। रिड्यूस देम टू 20, 100 रुपए के शेयर को 20 रुपए में कम कर देंगे, तो वो कितना छोड़ेंगे? 80 रुपए छोड़ेंगे। अगर इसमें लिखा होता तो रिड्यूस देम बाई 20, वो 20 रुपए छोड़ते, इसको 20 रुपए में किया है तो वो 80 रुपए छोड़ रहे हैं, तो 80 रुपए रिकंस्ट्रक्शन में जाएगा। ये डिफरेंस आपको ध्यान देना है। इक्विटी शेयर कैपिटल 100 अकाउंट डेबिट 10 lakhs to equity share capital 20 account 2 lakhs to reconstruction 8 lakh।
इसका मतलब 10 लाख के जो शेयर्स थे उन्होंने 8 लाख छोड़ दिए और 2 लाख इक्विटी शेयर के रह जाएंगे। इसका मतलब 10 लाख वालों को हम 2 लाख देंगे, 8 लाख रिकंस्ट्रक्शन में चलेगा। टू सेटल द क्लेम ऑफ द फर्स्ट डिवेंचर होल्डर्स बाय इशूइंग 20,000 कर्सर ले रहा हूँ 30.5% डिवेंचर सब फर्स्ट डिवेंचर होल्डर से हमारे 10% डिवेंचर से 2 लाख रुपए। To settle the claim of the first debenture holders by issuing rupees 2,000 13.5% डिवेंचर ऑफ 100। हम 2000 डिवेंचर्स इशू करेंगे तो जो पुराने डिवेंचर हैं वो 2 लाख के हैं, नए डिवेंचर भी 2 लाख के ही रहेंगे, लेकिन पहले इंटरेस्ट था 13.5%, अब सॉरी पहले इंटरेस्ट था 10%, अब इंटरेस्ट हो गया 13.5%। तो इसकी एंट्री जो बनेंगे ये बनेंगे 10% फर्स्ट डिवेंचर अकाउंट डेबिट 2 lakhs to 13.5%, 10% फर्स्ट डिवेंचर अकाउंट डेबिट 2 lakh टू डिवेंचर इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग। इसकी भी एंट्री में बता देता हूँ। Settle the claim of the first debentures, discharge the claim of the second debentures to pay 3 lakhs। जो डिबेंचर होल्डर्स हैं उनका इंटरेस्ट हम पे नहीं करेंगे क्योंकि इंटरेस्ट पेमेंट के बारे में कुछ नहीं लिखा है। तो सेटल द क्लेम ऑफ द फर्स्ट डिबेंचर्स, उनका इंटरेस्ट छोड़ देंगे। जो सेकंड डिबेंचर्स है उसको भी नए डिबेंचर्स इशू कर देंगे, उसका इंटरेस्ट छोड़ देंगे। सेकंड डिबेंचर से 4 लाख रुपए 5 लाख रुपए को उनको 4 लाख के डिबेंचर्स इशू करेंगे। ये जर्नल एंट्रीज पे आ जाओ। 10% फर्स्ट डिबेंचर डेबिट 2 lakhs to debenture interest outstanding 20,000 to debenture holders 220। debenture holders account debit 220 to 13.5% debentures 2 lakh to reconstruction 20,000। देखिए ये जो दो एंट्री है, ये एंट्री में थोड़ा चैलेंज है। ये पिक्चर हो सकता है बहुत अच्छा क्लियर नहीं है, हो सकता है इसको थोड़ा छोटा करने से नहीं है, कोई फायदा नहीं है। हम इसमें दो एंट्री ऐसे भी कर सकते हैं। 10% फर्स्ट डिवेंचर अकाउंट डेबिट 2 lakhs to 13.5% debentures 2 lakh। डिवेंचर इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट टू रिकंस्ट्रक्शन। ये दो तरीके से एंट्रीज हो सकते हैं। दूसरा 12% सेकंड डिवेंचर अकाउंट डेबिट 5 lakh, डिवेंचर इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग 60,000 टू डिवेंचर होल्डर्स 560, डिवेंचर होल्डर्स डेबिट 560 टू 15% डिवेंचर्स 4 लाख टू रिकंस्ट्रक्शन 160। इन्होंने 1,60,000 छोड़ दिया और इन्होंने 20,000 छोड़ा। नेक्स्ट आइटम टू पे 3 लाख टू मिस्टर वाई इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। ये जो मिस्टर वाई है उसको 3 लाख रुपए देंगे। देखिए क्रेडिटर्स टोटल थे 1150, इसमें से वाई का था 8.5। हम 8.5 वाले को 3 लाख रुपए दे देंगे, बाकी कुछ नहीं देंगे। टू अलॉट 15,000 फ्रेश इक्विटी शेयर्स ऑफ 20 टू डिस्चार्ज द रिमेनिंग क्रेडिटर्स। देखिए टोटल क्रेडिटर्स कितने हैं 1150, जिसमें से वाई 8.5 है, बाकी 3 लाख है। वाई को तो 3 लाख रुपए दे देंगे, बाकी 5 लाख रुपए रिकंस्ट्रक्शन। बाकी जो क्रेडिटर्स हैं उनको हम 20 रुपीज के वाले शेयर 15,000 दे देंगे, 3 लाख रुपए के शेयर दे देंगे। अब इसकी एंट्री देखिए। क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट 850 टू बैंक अकाउंट 3 लाख टू रिकंस्ट्रक्शन 550। 8.5 लाख रुपए के क्रेडिटर्स हैं, उनको हमने खत्म किया, बैंक 3 लाख दे दिया और रिकंस्ट्रक्शन में 5.5 चला गया। अब क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट 3 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल। जो 8.5 लाख रुपए पहली वाली एंट्री वाई वाली है, ये दूसरी एंट्री और की है।
Market value of the investment is 20,000. Stock is to be increased by 10,000. इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू है 20,000. इन्वेस्टमेंट कितने का है? 10,000. इसकी मार्केट वैल्यू होगी 20,000. 10 का 20 हो गया, 10 बढ़ गया. स्टॉक टू बी इंक्रीज बाई 10,000. इसका मतलब इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट 10,000, स्टॉक अकाउंट डेबिट 10,000 टू रिकंस्ट्रक्शन 20,000. इन्वेस्टमेंट डेबिट, स्टॉक डेबिट टू रिकंस्ट्रक्शन. यहाँ आ गया स्टॉक एंड डेटर्स डेबिट 10,000 टू रिकंस्ट्रक्शन 10,000. Then reconstruction debit to bank, reconstruction expenses paid. उसके बाद जो बैलेंस था रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू P&L 10 lakhs, टू प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 20, टू फिक्स्ड एसेट्स 5 lakhs. बाकी जो बैलेंस बचा 10,000 और कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा. ये रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट है. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 10 lakhs. देखिए पैसा आया कहां से? शेयर कैपिटल ने 8 लाख मिला, डिवेंचर होल्डर से 20,000 मिला, डिवेंचर होल्डर से 1,60 मिला. ये फर्स्ट डिवेंचर से सेकंड डिवेंचर. क्रेडिटर्स ने 550 दिया, स्टॉक एंड डेटर्स से 10 मिला, 1540. प्रॉफिट एंड लॉस में 10 था, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 20, फिक्स्ड एसेट्स 5 लाख का राइट ऑफ किया, 10,000 रिकंस्ट्रक्शन का खर्चा हुआ. उसके बाद कैपिटल रिजर्व 10,000. ये समझ आ गया होगा. ये सेकंड इलस्ट्रेशन ये आपको दिया हुआ है, आप खुद इसको ट्राई करेंगे क्योंकि मेरे को दूसरा जो टॉपिक है लिक्विडेशन के बारे में भी बताना है कुछ, इसलिए अभी इतना ही करते हैं कि लिक्विडेशन के बारे में आपको थोड़ा आइडिया देता हूँ. बस मैं थोड़ा स्क्रीन चेंज कर रहा हूँ. अच्छा स्टूडेंट्स, आई होप ये दिखाई दे रहा है आपको, सारा क्लियर है. लिक्विडेशन ऑफ ए कंपनी, इसको हम कहते हैं कंपनी का समापन. देखिए कंपनी क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन है. कंपनी का जन्म कैसे हुआ? बाय लॉ. तो कंपनी का समापन भी कानून से ही होगा. कंपनी नेचुरल डेथ नहीं हो सकती, इसलिए जैसे ही कंपनी का जन्म हुआ था वैसे ही कंपनी का समापन होगा. इसके लिए हम लिक्विडेशन मीनिंग, मोड्स ऑफ वाइंडिंग अप, लिक्विडेटर्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये सारा पढ़ेंगे. फाइनल स्टेटमेंट कैसे बनेगा, डेफिशिएंसी अकाउंट कैसे बनेगा, वो सारा देखेंगे. इसमें थ्योरेटिकल ज्यादा आएगा. ये चैप्टर इस सेमेस्टर में पहली बार आया है, इसलिए आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है. मैं आपको सारा पीपीटी दे रहा हूँ, जितना कवर अप हो जाएगा कर लेंगे. देखिए मोड्स ऑफ वाइंडिंग अप, किस तरीके से कंपनी का समापन हो सकता है. लिक्विडेशन का मतलब कंपनी का अंत करना. जैसे आप कोई दुकान बंद करते हैं, दुकान बंद कैसे करेंगे? सारे एसेट्स बेच देंगे, सारे लायबिलिटीज पे कर देंगे. एसेट्स बेच के लायबिलिटी पे करने के बाद जो कुछ बचेगा वो मालिक लोगों को मिल जाएगा. अगर कुछ कमी रह जाएगी मालिक लोग लेकर आएंगे. वही प्रोसेस हमने कंपनी के केस में देखा. अब मोड्स ऑफ वाइंडिंग अप, ऑन इनएबिलिटी टू पे डेट्स, जब कंपनी अपनी उधारी नहीं दे पाती, अपने डेट्स को पे नहीं कर पाती, तब कंपनी को वाइंडिंग अप करना पड़ेगा. ग्राउंड्स
अदर देन इनएबिलिटी टू पे डेट। अगर अपने डेट को नहीं दे पा रही है, उसके अलावा भी कोई कारण है क्या? तीसरा वॉलंटरी वाइंडिंग अप, कंपनी अपनी इच्छा से वाइंडिंग अप करती है। इनएबिलिटी टू पे डेट में इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड विद रेगुलेशंस ये लगेगा। ग्राउंड्स अदर देन इनएबिलिटी, वो कंपनी अधिनियम 2013 में कुछ रूल्स दिए गए, उसको हम स्टडी करेंगे। वॉलंटरी वाइंडिंग अप, कंपनी अपनी इच्छा से। 31 मार्च 2017 से पहले कंपनी के अधिनियम 2013 के नियम लागू होते थे। 1 अप्रैल 2017 के बाद सेक्शन 59 ऑफ द आईबीसी इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड लागू होगा। हम सेक्शन 59 को भी थोड़ा सा आपको पढ़ना है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लिक्विडेशन क्या है? A company comes into being through legal process and also come to an end by law. Liquidation is the legal procedure by which the company comes to an end. Thus, a company, being a creation of law, cannot die a natural death. यहाँ मैं आपको समझा चुका हूँ, कंपनी कानून द्वारा जन्म लेती है और कानून द्वारा ही उसकी मृत्यु होती है। कंपनी when found necessary can be liquidated, जब जरूरत होगी कंपनी का समापन होगा। Definition of winding up. As per section 294A of the Companies Act, winding up means winding up under this act or liquidation under the insolvency and bankruptcy code. इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड आईबीसी, इसको शॉर्ट फॉर्म में आईबीसी बोलते हैं। टाइप्स ऑफ वाइंडिंग अप, वाइंडिंग अप अंडर द कंपनीज एक्ट 2013, वाइंडिंग अप ऑन द ग्राउंड्स ऑफ इनएबिलिटी टू पे डेट under IBC Insolvency and Bankruptcy Code, voluntary winding up under section 50. इसमें as per section 270 the provisions of part 1 should apply to winding up of the company. Circumstances in which the company may be wound up by a tribunal. Tribunal कब winding up कर सकती है? Number 1, the company has by a special resolution resolved that the company be wound up by a tribunal. कंपनी ने स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके ये रिजॉल्व किया है कि ट्रिब्यूनल उसका वाइंडिंग अप करेंगे। द कंपनी हैज एक्टेड अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट्स, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, मॉरलिटी। इसका मतलब कंपनी ने कोई ऐसा काम किया हो जिसमें कंट्री की सिक्योरिटी में फर्क पड़ता है, कंपनी के फ्रेंडली रिलेशंस दूसरे स्टेट से उसके ऊपर फर्क पड़ता है, डिसेंसी या मॉरलिटी। द रजिस्ट्रार और एनी अदर पर्सन ऑथराइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन अंडर दिस एक्ट। रजिस्ट्रार या कोई और ऑथराइज्ड सेंट्रल गवर्नमेंट या कोई और पर्सन है जो उन्होंने ऑथराइज करा। The company has made a default in filing with the registrar its financial statements or annual returns for immediately preceding 5 consecutive financial years. कंपनी पिछले 5 साल में अपने अकाउंट्स या रिकॉर्ड्स को प्रोड्यूस नहीं किया। The tribunal is of the opinion that it is just and equitable. इसको हम कहते हैं just and equitable ground। ट्रिब्यूनल ये समझता है अब कंपनी को वाइंडिंग अप करना ही उचित है और कंपनी को वाइंडिंग अप नहीं करेंगे तो ये सबके इंटरेस्ट में नहीं होगा। अब आता है पेटिशन फॉर वाइंडिंग अप। कौन पेटिशन कर सकता है? पेटिशन कर सकता है का मतलब यह है कौन एप्लीकेशन दे सकता है वाइंडिंग अप करने के लिए। कंपनी खुद दे सकती है, एनी कंट्रीब्यूटरी और कंट्रीब्यूटरीज दे सकते हैं। कंट्रीब्यूटरीज क्या है? जो शेयर होल्डर्स हैं जिनको पेमेंट करनी है वो उनको कंट्रीब्यूटरी कहते हैं, उसका मैं बाद में डिस्कस किया हुआ है। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज दे सकता है। ए पर्सन ऑथराइज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ में वाइंडिंग अप एप्लीकेशन दे सकता है। इन केसेस अफेयर्स ऑफ द कंपनी हैव बीन कंडक्टेड
इन अ फ्रॉडुलेंट मैनर, अगर कंपनी के जो अफेयर्स हैं फ्रॉडुलेंट मैनर से कनेक्ट किए गए बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट। अब आपको एग्जांपल्स बहुत सारे मिलेंगे जो इंडिया में कंपनीज ने फ्रॉड किए हुए हैं। उस केसेस में कंपनी का बाइंडिंग अप, कंपनी के टेक ओवर के जो भी डिसीजन गवर्नमेंट ने लिया हुआ है। अगर आपको सत्यम कंप्यूटर कंपनी का केस याद होगा तो उसमें जो मिस्टर राजू हैं उन्होंने फ्रॉड किया था, तो उस कंपनी ने गवर्नमेंट ने टेक ओवर कर लिया था और गवर्नमेंट टेक ओवर करने के बाद महिंद्रा को दे दिया गया था। उसके बाद उसका नाम टेक महिंद्रा बन गया था। वॉलंटरी बाइंडिंग अप, a company may be owned voluntarily under section 304 of that. If the company in a general meeting passes a resolution requiring the company to be owned, कंपनी एक जनरल मीटिंग में रेजोल्यूशन पास करती है कंपनी का वॉलंटरी बाइंडिंग अप होगा, तो कंपनी का वॉलंटरीली होगा। इफ द कंपनी पासेस a special resolution that the company owned voluntarily, कंपनी ये दोनों रेजोल्यूशन जनरल या स्पेशल पास कर सकते हैं। जनरल रेजोल्यूशन के लिए आर्टिकल्स में उनको अनुमति होनी चाहिए और किसके लिए वाइंडिंग अप करना है उसको डिटेल देना पड़ेगा। सेक्शन 59 of the Insolvency and Bankruptcy, a corporate person who intends to liquidate itself voluntarily and has not committed any default may initiate voluntary liquidation proceedings under the provisions of Chapter 5 of the IBC Insolvency and Bankruptcy Code 2006। कोई भी कॉर्पोरेट पर्सन, मतलब कोई भी कंपनी जो अपने को लिक्विडेट करना चाहती है, जो अपना वाइंडिंग अप करना चाहती है, जो अपना समापन करना चाहती है और कोई भी डिफॉल्ट नहीं भी किया है, तब भी तो कंपनी अपना व्यापार बंद कर सकती है ना। तो इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड के अंतर्गत वो वॉलंटरी वाइंडिंग अप की पिटीशन दे सकती है। द वॉलंटरी लिक्विडेशन ऑफ a corporate person under section 1 shall meet such conditions and procedural requirements। जो भी प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करना जरूरी है। उसके बाद विदाउट प्रेजुडिस टू सबसेक्शन 2 voluntary liquidation proceedings of a corporate person registered as a company shall meet the following conditions। ये कंडीशंस पूरा होना जरूरी है। ये कंडीशन सारा आप डिटेल में देख लेंगे, सारा मैं पढ़ने की इतनी आवश्यकता नहीं समझ रहा हूँ, आप इसको देख लेंगे तो आराम से हो जाएगा। ये टेक्स्ट आपके पास रहेगा। ये फिर इंपॉर्टेंट आता है सेक्शन 20, अपॉइंटमेंट ऑफ रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स। रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स का मतलब जो कंपनी के रेजोल्यूशन करेंगे वो प्रोफेशनल्स की अपॉइंटमेंट कैसे होगी, जो सेक्शन 22 ऑफ आईबीसी दिया गया है। The first meeting of the committee of the creditors shall be held within 7 days of the constitution of the committee। जिस दिन कंपनी के क्रेडिटर्स की कमेटी की मीटिंग किया जाएगा उसके 7 डेज के अंदर कंपनी ये डिसाइड कर लेगी और उनकी मीटिंग हो जाएगी और वो मीटिंग में डिसाइड करेंगे किसको प्रोफेशनल क्रेडिटर अपॉइंट करना है। द कमिटी ऑफ द क्रेडिटर्स में in the first meeting by a majority of not less than 60% of the voting share of the financial creditors resolved to appoint a resolution professional। जो कंपनी के क्रेडिटर्स हैं कम से कम 66% जो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स है उस रेजोल्यूशन में पास करके किसी भी व्यक्ति को रेजोल्यूशन प्रोफेशनल बना सकते हैं। लिक्विडेट फाइनल स्टेटमेंट ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट का क्या मीनिंग है, कहां से पैसा आएगा और कहां खर्च होगा। जब कंपनी की वाइंडिंग अप करते हैं तब कंपनी के पास कहां से पैसा आएगा। इन केस ऑफ कंपल्सरी वाइंड अप द कंपनी लिक्विडेटर शुड कीप प्रॉपर बुक्स इन सच ए मैनर एज मे बी प्रेस्क्राइब। जो भी कंपनी का लिक्विडेटर होगा वो कंपनी के बुक्स को मेंटेन करेगा इन व्हिच ही शुड कॉज द एंट्रीज
or minutes to be made of the proceedings at the meetings and such other matters as may be discussed. जो भी लिक्विडेटर डिसाइड करेगा वो सारे मिनट्स के फॉर्म में रिकॉर्ड करेगा. Any creditor or contributor may, subject to the control of the tribunal, inspect any of such books personally or through his agent. कोई भी बुक्स को वो इंस्पेक्ट कर सकते हैं. As a matter of fact, this statement consists of the following two categories, namely amount realized by the liquidator, payment of various liabilities. कितना पेमेंट आएगा और कहाँ का खर्चा किया जाएगा. कितना पेमेंट आएगा कंपनी वो डिसाइड करेगी, कहाँ से पैसा आएगा और कहाँ का खर्च करेंगे. इसमें while preparing the liquidator statement of account, receipts are shown in the following order. Amount realized from the assets are included in the prescribed order. कितना assets से realize किया? In case of assets specifically placed in favor of creditors, एक सेकेंड. अच्छा, am I audible now? कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी. Amount realized from the assets. Second है, in case of assets specifically placed in favor of the creditor, what is the surplus from the assets, if any, is entered as surplus from secured creditors. तीसरा, in case of partly paid shares, the equity shareholders be called up to pay necessary amount. अगर पार्टली पेड शेयर से इक्विटी शेयर होल्डर से बाकी पैसा मांगा जाएगा जो भी उनसे ड्यू होगा. If the creditors claims preference shareholders cannot be satisfied with the available amount, preference shareholders should be called upon to contribute, not exceeding the uncalled amount. D. The amount received from calls to the contributors. जो कॉल्स हमने किए होंगे शेयर होल्डर से वो आ जाएगा. Receipts from trading as per the trading account are shown included in the receipt side. Payments made to redeem the securities and cost of execution of the payment. जो पेमेंट हम देंगे वो सारा क्रेडिट में आ जाएगा. अगर कुछ सरप्लस होगा वो डेबिट में आ जाएगा. देखिए इसको मैं रिपीट कर देता हूँ. Payments made to redeem securities and cost of execution and payments per trading account are deducted from total asset. अगर ये होगा डिडक्ट करने के बाद दिखाएंगे. पेमेंट्स में लीगल चार्जेस और द कॉस्ट ऑफ लिक्विडेशन वो शो करेंगे. लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस वो शो कर देंगे. डिबेंचर होल्डर्स इंक्लूडिंग इंटरेस्ट अप टू द डेट ऑफ वाइंडिंग अप if the company is insolvent and to the date of payment or if it is solvent. डिबेंचर होल्डर्स का जो इंटरेस्ट ड्यू है अगर इंसॉल्वेंसी है तो वाइंडिंग अप के डेट तक, अगर इंसॉल्वेंट नहीं है पेमेंट के डेट तक ले लेंगे. क्रेडिटर्स, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स वो ले लेंगे. उसके बाद अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, देन एरियर्स ऑफ प्रेफरेंस क्रेडिटर. प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स, जो भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है उनकी पेमेंट. लास्ट में इक्विटी शेयर होल्डर्स. देन commencement of winding up by the tribunal, where before the presentation of a petition for winding up of a company by the tribunal, a resolution has been passed by the company for voluntary winding. कंपनी ने एक रेजोल्यूशन पास किया होगा. The winding up of the company should be deemed to have been commenced at the time of passing of the resolution. जब कंपनी रेजोल्यूशन पास कर लेगी उसी दिन से वाइंडिंग अप माना जाएगा. And unless the tribunal on proof of fraud or mistake
thinks fit to direct otherwise. All proceedings taken in the voluntary winding up should be deemed to have been validly taken. In any other case, the winding up of the company by the tribunal should be deemed to commence at the time of presentation of the petition for the winding up. Exclusion of certain items, certain time and compounding period of limitation, notwithstanding anything in the Limitation Act or in any other law for the time being in force, in computing the period of limitation specified for any suit or application in the name and on behalf of the company. देखिए ये थ्योरेटिकल है, ये थोड़ा सा आप देख लेंगे. उसके बाद आता है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स. स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ये बनाया जाएगा. एक तरफ हम लेंगे कितना पैसा इन केस ऑफ winding up by the tribunal. Section 272(5) of the Companies Act that a petition presented by the company for winding up before the tribunal shall only if accompanied by a statement of affairs in such form and in such matter as may be prescribed. इसका मतलब कोई भी एप्लीकेशन तभी मानी जाएगी when a statement of affair is attached. In accordance with 274(1), where a petition for winding up is before the tribunal by any person other than the company, the tribunal shall, if satisfied that a prima facie case for winding up of the company is made out by an order, direct the company to file its objection along with statement of affair. Yes, objections company file करेंगे. The broad lines on which the statement of affairs is prepared includes assets on which there is no fixed charge. इसमें देखिए लिस्ट दिए गए हैं A to H. मैं लिस्ट के बारे में बता देता हूँ. स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स 8 लिस्ट्स हैं. लिस्ट A, full particulars of every description of the property not specifically placed and included in other list are to be set forth in the first list. List B, assets specifically placed are to be set in this list. List C, preferential creditors for rates, taxes, salaries, wages and otherwise. List D will be list of debentures secured by floating charge. List E, unsecured creditors. List F, preferential credit shareholders. List G, list of equity shareholders. And list H, deficiency account. आता है बात डेफिशिएंसी अकाउंट. कभी कभी कंपनी इसमें लिक्विडेशन में आपको डेफिशिएंसी अकाउंट भी पूछ सकते हैं. डेफिशिएंसी अकाउंट में दो साइड्स होंगे जिसमें आपको ये पता चलेगा कितना पैसा आया है, कितना पैसा गया है. Deficiency account is an account or a statement which explains a deficiency or surplus. Official liquidators will specify a date for period minimum 3 years, beginning with the date on which information is supplied for preparation of an account to explain the deficiency or surplus. इसमें देखिए दो पार्ट होंगे. मैं थोड़ा ब्रीफ में बता देता हूँ. First part starts with deficit on the given date and contains every item that increases deficiency. जो deficiency को बढ़ाएगा या surplus को कम करेगा. Second part credit side में आएगा, which includes all the profit. इसका मतलब पहले पार्ट में आप लॉसेस को दिखाएंगे, खर्चे दिखाएंगे जिससे डेफिशिएंसी बढ़ेगी. क्रेडिट साइड में आप सरप्लस को दिखाएंगे जिससे डेफिशिएंसी कम होगी. उसके बाद कंट्रीब्यूटरी के लिस्ट में शेयर होल्डर्स आ जाएंगे, लायबिलिटी आ जाएगी, लायबिलिटी ऑफ बी कंट्रीब्यूटरीज आ जाएंगे. अब एग्जांपल है लिस्ट ए कंट्रीब्यूटरी, लिस्ट बी कंट्रीब्यूटरी. ये सब इतना डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है. ये सिलेबस में दिया हुआ है इसलिए करा रहे हैं, लेकिन इतनी कोई आवश्यकता नहीं है.
आप इसमें डेफिशिएंसी अकाउंट का जो मैंने इलस्ट्रेशन दिया है वो जरूर आप देख लीजिए, वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। ये लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, ये जरूर आप एक क्वेश्चन कर लेंगे, कहाँ से पैसा आया और कहाँ से पैसा गया। और अब हमें क्लास वाइंड अप करना पड़ेगा। मैं आपके क्वेश्चंस शॉर्ट में ले लेते हैं। जो भी आपके क्वेश्चन है आप डैशबोर्ड में डाल दीजिए।